So, yesterday we discussed about the sectorial analysis, and today we are supposed to discuss about how to use this sectorial analysis for investment purpose as well for the purpose of trading. See, whenever you want to do investment, you'll have to keep a few things into your mind. Like, first of all, keep only 10 to 12 stocks. Never keep all stocks from the same sector. Rule number 3, minimum two stocks should be opted from a single sector and maximum you are allowed to keep four stocks. हमने कल पढ़ा था सेक्टर रोटेशन कि इट कुड बी कि कभी निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे हो, निफ्टी मीडिया ऑल टाइम लो पे हो, इट कैन बी निफ्टी मेटल बढ़ रहा हो, एफएमसीजी घट रहा हो. सो फ्रॉम एवरी सेक्टर, जो सेक्टर सबसे लो पर है उसके आप कौन से स्टॉक चूज करेंगे? उसके आप वो स्टॉक चूज करेंगे जिन्होंने अभी तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया या जिनकी वजह से रैली आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मीडिया इज एट ऑल टाइम लो, और मीडिया के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया? सो इफ आई नेम अ फ्यू, तो जी लिमिटेड, देन एस टी मीडिया, हैथवे, नेटवर्क 18, इन्होंने अभी तक किसी भी रैली में, रीसेंट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया. सिमिलर वे, you can find some other stock in all the sectors. Some would have performed in the rally, the other would not have. So जिन स्टॉक्स ने रैली में परफॉर्म कर लिया, आप उन्हें नहीं चूज करेंगे. लाइक व्हेन निफ्टी फार्मा वाज एट टॉप, तो उस समय सन फार्मा, जो निफ्टी फार्मा का हाईएस्ट वेटेड स्टॉक है, उसने उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था. But when it approached to its excellent monthly demand zone that was coinciding the quarterly one, it also performed well and led the entire Nifty Pharma in itself. Don't buy any stock at all time high. Being a beginner, we are allowed only to trade in the zone, not to buy at any price. All time लो के मैक्सिमम स्टॉक्स यू हैव टू कीप इन योर पोर्टफोलियो, जो सेक्टर ऑल टाइम लो पे हो, और जो ऑल टाइम हाई पर है उसके आप लिमिटेड स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे. 40-40-20 की हमारी एक थ्योरी है दैट आई विल एक्सप्लेन यू. वेन एवर वी से डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, ये बात सेक्टर पर अप्लाई नहीं होती. When sector is touching all time low, your confidence should increase. Because sector कभी भी zero नहीं हो सकता. Sector never becomes zero. A company can become worthless, but a sector never becomes zero. When to trade on upper demand zone and when to trade on lower demand zone, कैसे कंफर्म करें? Even if I am fully confident कि ये वीकली का डिमांड जोन चलेगा ही चलेगा, so shall I put my entire money in this demand zone? The answer is no. Even if you are fully confident about your trade setup, never, 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 never ever put your all eggs in one basket. Okay, अभी जो इंडियन मार्केट में चल रहा है एट प्रेजेंट, उसे डिस्कस करते हैं. निफ्टी टच दिस वीकली टाइम सप्लाई जोन. Same thing happened with other stocks also. Like in Axis Bank, there it was a supply zone. एक्सिस बैंक भी अपने सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है. रिलायंस अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करके नीचे आ रहा है. आईसीआईसीआई बैंक and the other major participants, let's see what they are doing and how they are doing. आईसीआईसीआई बैंक में एज सच कोई सप्लाई जोन नहीं है. आईटी के स्टॉक्स देख लेते हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं. हमने कल डिस्कस किया था that there is a website, we can open that website and the name of the website is niftyindices.com. So here are sectorial analysis and we have to go to Nifty IT. Let's see किस कंपनी की कितनी वेटेज है.
और वो हमें पता चलेगा फैक्ट शीट से। सो लेट्स डाउनलोड द फैक्ट शीट। हियर इट इज द फैक्ट शीट। सबसे ज्यादा वेटेज है इन्फोसिस की, then Tata Consultancy Services, then HCL. Why we are looking at this Nifty IT? Because Nifty की टोटल वेटेज के अंदर निफ्टी आईटी की भी हाईली वेटेज है। सो लेट्स गो टू Infosys, Infi. What has happened to Infi? Infi has also Infi is also coming from its quarterly सप्लाई जोन। और नीचे कहां से चल रहा है? टॉप डाउन अप्रोच पूरी करके देखना। देर इट वॉज अ ईयरली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ईयरली टाइम फ्रेम डिमांड जोन that has no achievement at all, that did not close above the previous yearly supply zone, that was without base वाला this area। इसको ब्रीच तो कर दिया पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। On half yearly structure, there it was a demand zone that was breached, completely breached। Why it was breached? क्योंकि इस हाफ ईयरली की भी कोई अचीवमेंट नहीं थी। और अगर आप बेस कैंडल की लेंथ देखो तो लेगिन की लेंथ इज स्मॉलर देन बेस कैंडल की लेंथ। दैट मीन्स प्राइस में कुछ मूवमेंट आया ही नहीं, कुछ इम्बैलेंस हुआ ही नहीं। तो इफ देर इज नो इम्बैलेंस इन द प्राइस, देर इज नो यूज ऑफ सच डिमांड जोन। Let's go on some smaller time frame. Quarterly, yes, there it is a quarterly supply zone, including the that is coinciding the yearly supply zone। नीचे डिमांड जोन की इफ वी टॉक अबाउट डिमांड जोन, तो एक तो यही रहा डिमांड जोन दैट गॉट ब्रीच। इज देयर एनी अदर डिमांड जोन? तो यहाँ मल्टीपल, ये सिर्फ बेस बेस कैंडल सी हैं, क्वार्टरली पर तो कुछ और नहीं दिख रहा। सो लेट्स गो ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। इज देयर समथिंग ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम? yes, there it was a demand zone on monthly time frame। ये रहा, दिस वॉज ब्रीच्ड। यही वो क्वार्टरली की भी पिक्चर होगी। उसके नीचे ये रहा एक मंथली का डिमांड जोन, प्रोबेबली यहाँ पर एक वीकली का भी डिमांड जोन है जहां से प्राइस ने रिवर्सल लिया है। हियर इट इज, हियर इट इज। यहीं से इसी एरिया से प्राइस ने रिवर्सल लिया है। प्रॉक्सिमल को टच करने से पहले ही प्राइस चल गया एंड नाउ इट्स गोइंग टुवर्ड्स द अनदर सप्लाई जोन। अब यहां से प्राइस नीचे क्यों आया? यहां पर प्राइस इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? एज देर इज अ डेली काइंड ऑफ सप्लाई जोन। इस एरिया में जब प्राइस पहुंचा, इसके प्रॉक्सिमल को टच किया, तो अभी प्राइस ऊपर जाने के लिए फाइट कर रहा है और प्राइस ऊपर नहीं गया। नाउ लेट मी शो यू समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस हैज रिसेंटली हिट इट्स क्वार्टरली सप्लाई जोन and there it was no good quarterly demand zone, yet there it was a price movement from this point until this point। इसके नीचे there is a fresh quarterly demand zone। On yearly time frame there is no good picture on Reliance except this demand zone that was almost 100% tested until the distal line at the time of corona। Except that, is there any other demand zone? Here it is। And remember one thing, Reliance has the third largest weightage in Nifty। रिलायंस हैज द थर्ड लार्जेस्ट वेटेज इन निफ्टी। और अगर कुछ भी बड़ा गलत इंफॉर्मेशन या कुछ भी मिस स्प्रेड हुआ, एटलीस्ट एक ईयरली का डिमांड जोन तो हमारे पास होना ही चाहिए टू सपोर्ट आवर प्राइस, या क्वार्टरली पर एक अच्छा डिमांड जोन होना चाहिए। सो लेट्स सी, डू वी हैव समथिंग गुड ऑन रिलायंस? On half yearly time frame, there is nothing. Price is going as a garbage. There is nothing good. There it was a good demand zone, kind of you can say good demand zone, though it was not good. But yes, leg out एक clear थी, तो उसने एक बार के लिए प्राइस को रिफ्लेक्ट किया है। देन अगेन देर इट वाज अ क्वार्टरली टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, उसी की विक को टच करके, प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके प्राइस नीचे आ रहा है। देर इज अनदर क्वार्टरली टाइम फ्रेम डिमांड जोन जो थोड़ा सा नीचे है, जिसे मैंने मार्क किया हुआ है। नाउ व्हाट आई वांट टू शो इज, if we go on monthly picture, there is no good structure, as there are multiple demand zones that have been formed by each other, that we call the follow up demand zones, जो एक दूसरे को पूरा ब्रीच कर चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। Do we have something good on weekly time frame?
और मंथली टाइम फ्रेम, एक ये वाला मंथली का डिमांड जोन बचा हुआ है। सारे डिमांड जोन्स को अगर मैं छोड़ दूं, इफ आई लीव ईच एंड एवरी डिमांड जोन अपार्ट, देन आई हैव ओनली वन गुड डिमांड जोन इन रिलायंस, और वो इस एरिया में है, 730 740 वाले एरिया में। प्रायर टू दैट देर इज नो गुड डिमांड जोन। लेट्स सी ऑन वीकली टाइम फ्रेम, व्हाट डू वी हैव ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक डिमांड जोन है दैट हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम, वंस, ट्वाइस, थ्री टाइम्स। ओके, लेट मी बिगर अप दिस पिक्चर। ये रहा एक डिमांड जोन जिसको एक बार, दो बार और तीन बार टेस्ट कर लिया गया है। सो इट इज टेस्टेड। क्या अब ये काम करेगा? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि चौथी बार भी ये यहीं से टेस्ट होके प्राइस ऊपर गई है और क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट किया है। Now, if price come back with the full force, what is there to stop in quarterly demand zone? Probably this is the area जो एक बार के लिए प्राइस को रोक सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन स्टॉप द रिलायंस, कैन दिस डिमांड जोन नंबर वन स्टॉप द रिलायंस and give it a full recovery? Or demand zone number two that you have marked as monthly, can it give the proper recovery? Or the lower demand zone that is in green part, RB4W, weekly demand zone, can it give the recovery? See, it totally depends upon when Reliance will approach to this demand zone. Will other highly weighted stock of Nifty itself, oil and gas, as Reliance is the major stock of oil and gas, Nifty oil and gas, Nifty, and other highly weighted stock, will they also reach at the same time in this demand zone? If yes, probably we might get a huge recovery from this demand zone itself. If not, we might have to wait for the lower area, this one. यहाँ पर भी जब ये स्टॉक आया रिलायंस का, इफ अदर हाईली वेटेड स्टॉक डू नॉट अप्रोच टू देयर डिमांड जोन, this might also breach. Finally, price might recover from this area. Now, why I kept two stocks को मैंने सामने सामने क्यों रखा है? एक तरफ तो रिलायंस है और दूसरी तरफ निफ्टी है। Now, what's happening in Nifty? Nifty today entered into one of its very normal kind of weekly demand zone that do not have, मतलब लेग आउट भी बहुत अच्छी नहीं है, लेग आउट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, और लेग आउट वीकली के डिमांड जोन के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दे पाई। ये वाले वीकली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। स्टिल आज कुछ देर के लिए प्राइस ने निफ्टी को रोका। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी? निफ्टी में बैक टू बैक वन, टू और ये थ्री, देर आर थ्री क्वार्टरली डिमांड जोन्स। इफ वी लुक ऑन ईयरली टाइम फ्रेम, देर इट इज अ क्लियर कट डिमांड जोन ऑन निफ्टी। Here it is. Here you can see. On half yearly time frame, there is another demand zone. On quarterly time frame, there is a demand zone that is coinciding this half yearly and yearly picture. Trust me, this is one of the most powerful picture. If something happens that is announced as world war or nuclear war, price may approach in this area. See, whenever price has to approach bottom, coinciding areas, they are always better for option trading. बट मैं आपको कुछ एक चीजें और भी आज बताऊंगा दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, इफ यू नोट इट डाउन एंड मेक योर नोट्स इन बोल्ड लेटर्स, ट्रस्ट मी, योर entire trading journey will change. Price will approach to this level, this lower level, only when the panic will be created. क्योंकि प्राइस को 24,000 से 19,000 पर अगर लेके आना है, अगर हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्राइस को लेके आना है, इट फॉर श्योर नीड सर्टेन रीजन के प्राइस 19,600 पर आ जाए। डाउनफॉल इज मैंडेटरी। एंट्री इन एन एक्सीलेंट डिमांड जोन, downfall always needs a reason. Downfall will come with panic, and institutional when investors will play with the psychology of a retailer.
निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर वीकली डिमांड जोन में लेके आना है एक एक्सीलेंट वाले दैट इज कोइंसाइडिंग द क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, then to break down the market it is really important to create panic as retailers do play an important role in the market. It is not just institutional investor who can push down the price. He also needs the support of retailer, और retailer तब trigger होगा when they will get certain kind of news. यहां से प्राइस रिएक्ट करने की और प्रोबेबिलिटी हाई क्यों है? क्योंकि इसी एरिया के अंदर ये क्वार्टरली का ईएमए भी मौजूद है. हियर इट इज, हियर इट इज. इसलिए यहां से प्राइस के रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी है. नाउ लेट्स सी ऑन वीकली टाइम फ्रेम. इफ वी गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम, देयर इज नो गुड डिमांड जोन prior to this weekly demand zone. As you can see the complete picture, ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन था जिसमें कोई वीकली के डिमांड जोन की पिक्चर नहीं बची है, एक्सेप्ट दिस एरिया. एज यू कैन से कि यहाँ पर प्राइस गैप डाउन हुआ और यहीं से रिवर्सल हो गया. दिस एरिया यू कैन से 21,273. और द अदर थिंग दैट यू कैन से कि एक ये डेली का डिमांड जोन है और एक ये ऊपर वाला डेली का डिमांड जोन है. ये दो डिमांड जोन्स है दैट कैन स्टॉप द प्राइस एट वंस. और अगर प्रेशर के साथ, पैनिक के साथ प्राइस नीचे आती है एंड ब्रेक डाउन दिस क्वार्टरली डिमांड जोन, then there it is a weekly demand zone picture that can stop the price, that is coinciding the half yearly, quarterly and yearly picture. Now what my point is, if at the same time reliance approach if at the same time reliance approach its demand zone number 1, then price will get a huge reversal from this demand zone number 1. Let's take certain other condition. If price approach in Nifty at this demand zone and in Reliance price reaches as demand zone number 2, then trust me, हमें ये देखना जरूरी है कि जब निफ्टी के इस डिमांड जोन पे प्राइस आ रही है, एट दैट टाइम रिलायंस ने, एचडीएफसी ने, आईसीआईसीआई ने, एक्सिस ने, इन्फोसिस ने अपने किस बड़े डिमांड जोन में एंट्री दी है. दैट डिमांड जोन विल बी द रिकवरी पॉइंट और द रिवर्सल पॉइंट, एंड दिस इज डिमांड जोन नंबर 3. तो मुझे लगता है द मूवमेंट निफ्टी विल एंटर, निफ्टी विल एंटर इट्स ये वाला डिमांड जोन, उस टाइम पर रिलायंस विल एंटर अपना ये 2 नंबर वाला डिमांड जोन और प्रोबेबली द लोअर वन, ये वाला जिसको मैं मार्क कर देता हूं एज डिमांड जोन नंबर 3. मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जस्ट टू बिल्ड अप योर साइकोलॉजी, कि इवन इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर, इवन इफ मान लो Pakistan makes attack on India with all its 125 nuclear missiles, and India make attack on Pakistan with all 150 or 170 missiles whatsoever we have with full force, then market is supposed to come down. और मार्केट को कोई ना कोई रीजन चाहिए इन अच्छे वाले डिमांड जोन्स में आने के लिए. एंड व्हाट इट कैन बी द रीजन, the war or the other situations like that are spread. आज नहीं, फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो कि प्राइस इस एरिया में आए डिमांड जोन नंबर 3 और सेम टाइम पे प्राइस निफ्टी को अप्रोच करती है इन डिमांड जोन नंबर 1, दिस डिमांड जोन, ट्रस्ट मी दिस वुड बी द बेस्ट बाइंग. ये वो एरिया होगा जहां पर आपको जाकर के इन्वेस्टमेंट करनी है. आपको ट्रेडिंग कहाँ करनी है, वेर यू हैव टू डू ट्रेडिंग. सी whenever you find certain good demand zone in Nifty or Bank Nifty on daily or weekly demand zone, along with that you find certain hourly income trade, daily income trade or weekly income trade in any of the stocks. आपने ये नहीं मेजर करना कि निफ्टी तो डेली के डिमांड जोन में आई है, मेरा स्टॉक वीकली के डिमांड जोन में आ रहा है, विल इट रिस्पॉन्ड और नॉट? यस इट विल. बोथ शुड एंटर into some of the demand zone at the same time. Sometimes you would have observed कि मेरा डिमांड जोन तो ये रहा, पर मेरे डिमांड जोन को ब्रीच करने के बाद प्राइस यहां से रिवर्सल हो गई. व्हाट इज द रीजन यार, मेरा डिमांड जोन क्यों ब्रीच किया? एम आई एट फॉल्ट?
तो जो आपका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट यही है, यू डिड नॉट टेक द सपोर्ट ऑफ निफ्टी, द फादर एंड द मदर ऑफ मार्केट। अगर निफ्टी अपने वीकली के डिमांड जोन पर होता, एट द सिमिलर टाइम यू स्टॉक enters into a good demand zone, trust me, its probability to return or reversal is incredible. It's bound to reverse. लेकिन अगर रिलायंस इस डिमांड जोन में आ गया एंड निफ्टी अपने किसी अच्छे डिमांड जोन में नहीं आती, इट माइट बी रिलायंस इस वाले डिमांड जोन को ब्रीच करे, it may enter into demand zone number 2 and it may get a reversal from here। क्योंकि जब ये डिमांड जोन नंबर 2 में एंटर किया, हो सकता है उस टाइम पे निफ्टी ने भी डिमांड जोन में एंटर किया हो। लेट मी शो यू द सेम काइंड ऑफ पिक्चर इन एचडीएफसी बैंक। व्हाट्स हैपनिंग हियर, there is no good demand zone on yearly time frame until here, until this point। Whatsoever demand zone we had on yearly time frame that was breached in 2020, और प्राइस में सिर्फ यहाँ पर ही एक ईयरली का डिमांड जोन है। ऑन हाफ ईयरली टाइम फ्रेम देयर इट वाज अ डिमांड जोन दैट वर्कड, दैट गेव एक्सीलेंट रिटर्न, बट क्योंकि एक बार चल गया, उसके बाद इसको हाफ ईयरली के ईएमए ने ही रिवर्सल दे दिया विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द बिगर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। लेट्स सी, इज देयर अ गुड डिमांड जोन देयर? नो, क्वार्टरली का भी डिमांड जोन नहीं था, क्वार्टरली का भी डिमांड जोन नहीं था। अभी कहाँ से एचडीएफसी में प्राइस चल रहा है? फ्रॉम दिस नॉर्मल सा क्वार्टरली का डिमांड जोन, जिसमें बेस की ही लेंथ लेग आउट से ज़्यादा है, पर वही एरिया से प्राइस रिवर्स हो रहा है और ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। दैट टू विद गार्बेज ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम। वाई गार्बेज? बिकॉज देर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, रैली, बेस एंड रैली। आफ्टर दिस देर इट वॉज अ गुड स्ट्रक्चर, नॉट द प्रॉपर वन, येट इट वॉट गुड। यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो चुका है। लेट्स सी ऑन मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पर you can say it has formed a newly monthly wala demand zone that is somewhat here, though it is not a proper demand zone, but yes, it can be assumed as a demand zone क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, ये मंथली टाइम फ्रेम पर है। इट इज अ गुड डिमांड जोन। अभी प्राइस हुआ क्या है, लेग आउट itself has touched the proximal line after the formation of the demand zone. Leg out, the second leg out itself has touched the demand zone of the proximal line. That means probably this monthly candle has picked up entire orders from this monthly demand zone। तो हो सकता है इसके मंथली डिमांड जोन के पेंडिंग ऑर्डर ना बचे हों। प्रायर टू दिस देयर इट वाज अ मंथली डिमांड जोन जिसके ऑर्डर एग्जीक्यूट इस कैंडल ने कर दिए। प्रायर टू दिस वाज अ डिमांड जोन। तो ये जो लेग आउट बनी, इसने इस पूरे डिमांड जोन के 70% से ज़्यादा एरिया को ब्रीच कर दिया। सो एज पर आर थ्योरी वी कैन नॉट कंसीडर दिस एज अ गुड डिमांड जोन। हो सकता है एक बार के लिए ये भी प्राइस को रोके, एक बार के लिए ये जो बॉटम वाला ये पूरा रिवर्सल है दिस एरिया, इट कुड बी कि ये भी एक बार के लिए प्राइस को रोके। वट गुड इज देयर टू स्टॉप द प्राइस? ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन। लेट्स गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर देयर इट इज अ गुड डिमांड जोन, that is clearly drop based rally with two strong legouts। और उसके बाद प्राइस के वीकली के ईएमए ने ही प्राइस को ऊपर पुश कर दिया और ऑल टाइम हाई पे ले गया। सो इंस्टेड जब डिमांड जोन, जब ईएमए चलने लगते हैं, तो वी ऑलवेज कंसीडर कि इस स्टॉक के अंदर अब अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। देर इज नथिंग बैड इन इट एज not just demand zones, even EMA is also acting as a support part, that too on weekly time frame। अब क्या होता है जी, देखते हैं। नीचे इसके बाद कोई और डिमांड जोन, देयर इट वाज अ डिमांड जोन, जो अगर मैं बात करूं इसकी विक टू विक, अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क करता हूं एरिया को, इफ आई मार्क दिस एरिया लाइक दिस, तो प्रोबेबली ओके, लेट्स मेक द पिक्चर बिगर। इफ आई मार्क दिस एरिया विक टू विक, तो प्रोबेबली ये वाला एरिया भी टेस्टेड है। द ओनली नॉन टेस्टेड एरिया इज दिस डिमांड जोन। और इससे पहले कौन सा डिमांड जोन है वीकली का? देयर इट वाज अ डिमांड जोन जिसकी रिफ्लेक्शन से ये डिमांड जोन बना, एंड आफ्टर दिस इट वाज टेस्टेड थर्ड टाइम। प्रायर टू दिस इज देयर एनी अदर डिमांड जोन? यस, देयर इट वाज अ डिमांड जोन, ये रहा।
पर दिस इज ऑल्सो टेस्टेड. सो यहाँ पर नॉन टेस्टेड डिमांड जोन कहाँ है एक्सेप्ट दिस प्लेस? Let's try to find out, is there any other demand zone? Probably not. So I have marked two areas here on weekly time frame. One is in blue picture, the one is in green picture. Which one will work? Which one will perform better? The upper one or the lower one? Okay, let me give them numbering. The demand zone number one or the demand zone number two? Again, the answer is same. When Nifty, Bank Nifty, along with Reliance and all major stocks will enter into the demand zone, at that time अगर SDFC अपने इस वीकली के डिमांड जोन पे एंटर करता है, ट्रस्ट मी दिस वुड बी द रिवर्सल पॉइंट. पर ये जब प्राइस गिरेगा फ्रॉम 1900 टू 1245 या टू 1000, मीन्स आधा हो गया. 1940 का इसने हाई लगाया और उसके बाद प्राइस हमें एंट्री दे रहा है 1060 पे. ट्रस्ट मी, हम में से आधों की भी हिम्मत नहीं होगी कि प्राइस 2000 से 1057 हो गया, क्या ये काम करेगा यहाँ पर या नहीं करेगा. और ऐसे ऐसे न्यूज़ फैलाए जाएंगे, दुनिया तबाह हो गई, इतने लाख करोड़ मार्केट में स्वाहा हो गए. यू वॉन्ट बी एबल टू बाय एट लेवल नंबर वन, नीदर एट लेवल नंबर टू. पर इन सारी चीजों का ब्रेक क्या है? How to have the unbeatable psychology? The only answer is you will have to see at the same time when HDFC Bank is entering into this demand zone, क्या उस टाइम पे निफ्टी ने भी अपने इस ग्रीन वाले डिमांड जोन में एंट्री दे दी, या जब ये डिमांड जोन नंबर वन पे आया उस समय एंट्री मिली. तो इफ निफ्टी एंड HDFC बैंक बोथ एंटर्स इन द डिमांड जोन एट द सेम टाइम इन डिमांड जोन नंबर वन, तो प्राइस यहीं से रिवर्सल हो जाएगा. यहीं से रिवर्सल हो जाएगा. देयर इट वॉन्ट बी एनीथिंग एल्स जो इसको रोके. सेम पिक्चर इज देयर इन ICICI बैंक. देयर इज नो गुड स्ट्रक्चर. ये वाला ईयरली का डिमांड जोन टेस्टेड है 2020 में. ICICI बैंक हैज डन समथिंग गुड. इट हैज शोन अ गुड स्ट्रक्चर. हम एक ये बेस कैंडल भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं. देयर आर टू बेस कैंडल्स ऑन ईयरली टाइम फ्रेम. पर ये बहुत बड़ा जोन हो जाएगा. नो वरीज, लेट्स मार्क इट एट वंस. एक बार के लिए हम इस पूरे एरिया को मार्क करते हैं. दिस इज आवर ईयरली टाइम फ्रेम डिमांड जोन. ऑन हाफ ईयरली टाइम फ्रेम दिस इज द डिमांड जोन. ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम this red candle is the demand zone. Or you can consider these five candles as the base candle and then ye do lag out. What's there on weekly time frame? On weekly time frame there are multiple demand zones. One is here, another is here. If ICICI Bank and HDFC along with the Nifty enters at that same time अपने वीकली के डिमांड जोन में इस वाले एरिया में, या निफ्टी अपने डेली के डिमांड जोन में आ जाता है इस वाले एरिया में, जस्ट लुक एट देयर RB7 वाले एरिया में, और ICICI बैंक आ जाता है अपने RB8 वाले एरिया में, ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज रिवर्सल. और अगर ICICI बैंक इस वाले वीकली में आता है एट द सेम टाइम निफ्टी अपने इस 23,500 वाले डेली के डिमांड जोन में आता है, इट विल बी अ गुड रिवर्सल. बट व्हाट इट इज गोइंग टू बी अ ट्रिमेंडस रिवर्सल, विल हैव टू सी. जो ये निफ्टी में अभी हमने वीकली पर स्ट्रक्चर देखा था, लेट्स गो एंड वॉच दैट स्ट्रक्चर अगेन. डिमांड जोन नंबर वन, isn't it the same structure that is on 933? तो अभी होगा क्या कि अभी किस प्राइस पे ट्रेवल कर रहा है? ICICI Bank has made a high of 1451, but when it will come down to 933, trust me, many of us, rather most of us, won't dare to enter at this price. But this is going to be the best investment opportunity ever. अब मुझे इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे करनी चाहिए, या ये भी एक ठीक ठीक सा डिमांड जोन दिख रहा है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट इधर कर लूँ? ये भी तो एक अच्छा वीकली का डिमांड जोन है, क्या मैं इधर कर लूँ? सेम आंसर you will have to see when multiple stocks are entering into the demand zone.
सेम पिक्चर इज इन एक्सिस बैंक। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आज या आज से 4-5 साल बाद कभी भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है, क्योंकि साधारण सी न्यूज तो ना तो इसको डिमांड जोन नंबर ग्रीन में लेके आ पाएगी, ना ही डिमांड जोन ब्लू में लेके आ पाएगी एक्सिस बैंक को। बट वेन एवर देर इट इज अ न्यूज that pushes the price to come down to demand zone number 1 or the demand zone number 2, please observe at the similar time has Nifty entered into its demand zone number 1 or the demand zone number 2. This is what I am calling the demand zone number 2. जब भी कभी इस एरिया में प्राइस एंटर करे with maximum or the multiple हैवी वेटेड स्टॉक्स, जितने ज़्यादा स्टॉक एक साथ डिमांड जोन में एंटर करेंगे, प्राइस के रिवर्सल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। और एक्सिस बैंक पे तो हाफ ईयरली के अंदर ये वीकली की पिक्चर है दैट वी हैव जस्ट मार्क द डिमांड जोन नंबर 1, दिस वन। इसके ना चलने की प्रोबेबिलिटी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी इस टाइम पे जवाब दे जाएगी, दे वॉन्ट बी एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट। इससे पहले के डिमांड जोन्स के साथ क्या दिक्कत है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? This was the demand zone that has been tested. It has given closing above this supply zone, but could not give closing above this consolidation. Moreover, price is coming back from a quarterly kind of structure, a quarterly demand zone. Price is approaching from a quarterly demand zone and reacting from a quarterly supply zone. On monthly time frame, there it is a demand zone that has not given closing above this weekly supply zone, though it has pierced the entire supply zone, पर इसके ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, दैट इट हैज नॉट डन। तो इसके बाद क्या ऑप्शन बचती है? एक तो ये है मंथली का डिमांड जोन, और एक ये मंथली का डिमांड जोन है दैट इज कोइंसाइडिंग द हाफ ईयरली डिमांड जोन, जिसके अंदर वीकली का ये रहा वो एरिया दैट इज प्लेबल। सो वेन एवर देर इज अ सैड न्यूज, बहुत क्रैश हो जाती है मार्केट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यही वो दो चैप्टर होंगे सेक्टोरियल एनालिसिस के दैट आर गोइंग टू हेल्प यू आउट टू डिसाइड वेदर यू हैव टू गो लॉन्ग। इसके बिना आप लॉन्ग होने का नहीं सोच सकते। विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द सेक्टर, प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। अगर निफ्टी अपने डिमांड जोन में आई है एट द सिमिलर टाइम, आपका स्टॉक भी डिमांड जोन में आ गया है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, गिव योर ट्रेड वन एक्स्ट्रा स्कोर। पर अगर निफ्टी अपने किसी ऐसे डिमांड जोन में आई है लाइक दिस वीकली दैट इज कोइंसाइडिंग द क्वार्टरली एंड द हाफ ईयरली टाइम फ्रेम, सिमिलर स्ट्रक्चर इज देयर इन द एक्सिस बैंक, दिस डिमांड जोन, गिव दिस ट्रेड 3 marks। 7 on 7 तो चाहिए ही चाहिए अपने को। दिस ट्रेड इज ऑलरेडी 7 on 7, इट हैज ऑलरेडी गिवन क्लोजिंग अबव द एंटायर कंसोलिडेशन, बेस मिनिमम है, लेग आउट मैक्सिमम है, तो 7 on 7 तो है ही। पर एट दैट टाइम अगर निफ्टी भी इस डिमांड जोन में एंटर कर रही है, एंड डिमांड जोन नंबर 1, एक्सिस बैंक भी एंटर कर रहा है, आईसीसीआई भी एंटर कर रहा है, एचडीएफसी भी एंटर कर रहा है, सारे मेजर स्टॉक्स एंटर कर रहे हैं अपने अच्छे डिमांड जोन के अंदर, तो आप इस ट्रेड को 10 on 10 मानेंगे, 7 on 7 नहीं मानेंगे। ओके, मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूँ टू क्लियर योर कंसेप्ट। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक प्रोबेबली स्प्लिट हुआ है बीच में। ओके, let's go on yearly time frame. See what we can see on yearly time frame. There is no clear cut supply zone. There it was a supply zone, ये रहा, जिससे ये टेस्टेड हुआ, फिर ये एक सप्लाई जोन बना, ड्रॉप ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, अनदर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, जिससे ये टेस्ट हुआ, प्राइस को जो ऑल टाइम लो पे लेके गया, और उसके बाद से प्राइस रिवर्सल हो रहा। भी प्राइस ये रुक कहाँ से रहा है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। हाफ ईयरली पे देखते हैं पिक्चर। हाफ ईयरली पे क्या है, हाफ ईयरली पे देर इट वाज अ सप्लाई जोन, ये वाला,
जिससे टेस्ट होके ये वाला सप्लाई जोन बना, इसी की रिफ्लेक्शन से ये वाला सप्लाई जोन बना और ये प्राइस को नीचे पुश किया इसने। देर इट वॉज अनदर सप्लाई जोन, देर इट वॉज अनदर सप्लाई जोन। पर प्राइस जहां से रिवर्सल ले रहा है वो कौन सा एरिया है? लेट्स चेक दैट एरिया टू। ये वाला डिमांड जोन तो ब्रीच हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके सारे पेंडिंग ऑर्डर यहीं पर प्रॉक्सिमल पर एग्जीक्यूट हो गए थे एंड इट लीड टू द प्राइस ऑल टाइम हाई। अब प्राइस पूरे प्रेशर से आ रहा था, इसको इसने ब्रीच किया और इसके नीचे वाले एक छोटे डिमांड जोन से चला। अब वो क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ट्रैप की क्लास में कि हाउ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रैप अ रिटेलर। कि जब वो प्राइस को लेके आ रहा है ऑल टाइम लो पे या ऐसे किसी एरिया में, तो इंस्टेंट बड़े टाइम फ्रेम पे चलाने के वो क्या करता है, वी विल सी दैट टू। अभी आज की डेट में इसका स्ट्रक्चर क्या है? आज की डेट में देर इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर ये रहा दैट डू हैव द सपोर्ट ऑफ हाफ ईयरली ईएमए रैली बेस्ड विद टू मोस्ट एक्साइटिंग लेगआउट कैंडल्स। क्वार्टरली पर देखते हैं जी। क्वार्टरली पर देर इट वॉज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर, लेग इन बेस लेग आउट, स्टिल उस स्ट्रक्चर ने ही प्राइस को रोका और प्राइस को रिवर्सल दे दिया। प्राइस नीचे कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सप्लाई जोन, इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से। अभी क्वार्टरली पे हमने पिक्चर देखी, क्वार्टरली पे यहाँ पर क्या कोई डिमांड जोन था? प्रोबेबली देयर इट वाज, जो ब्रीच हो गया था, जिसको हमने बात की, जिसमें से हाफ ईयरली पे भी अभी हमने पिक्चर देखी थी, फ्रॉम वेयर दिस प्राइस गेट द एंटायर रिवर्सल एंड दिस सेलिंग प्रेशर ब्रीच द एंटायर quarterly demand zone. Now, what was happening until this time? Except this supply zone, all other supply zones were tested. Although this supply zone was also tested with the wick area, not body to body, but wick to body. तो विक से ये वाला एरिया एक बार के लिए बना, उसी से यहाँ पर अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वी विल फाइंड मल्टीपल सप्लाई जोन्स दैट वर फॉर्म बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। देयर इट वाज अ डिमांड जोन ऑल्सो, इसने भी एक बार के लिए अपना 2:1 का टारगेट दिया, बट एज द सेलिंग प्रेशर वाज हाई तो ये मल्टीपल सप्लाई जोन्स बनाता चला गया। उसके बाद जब ये सारे एक दूसरे से रिफ्लेक्शन से सप्लाई जोन बनते गए तो ओनली दिस वाज द फ्रेश सप्लाई जोन जहां पर डेथ क्रॉसओवर भी था। तो व्हेन द प्राइस गॉट रिवर्सल तो अल्टीमेटली एक बार के लिए तो ये वाले एरिया ने, इस वाले सप्लाई जोन ने प्राइस को रोका, उसके बाद ये ऊपर वाले सप्लाई जोन ने प्राइस को रोका। आफ्टर दैट देयर इट वाज नथिंग फ्रेश अंटिल दिस एरिया दैट वी हैव मार्क टू स्टॉप द प्राइस। तो हम देख रहे हैं कि उसके बाद प्राइस कॉन्टिन्यूसली चला ही है अंटिल दिस एरिया। अब क्या होने वाला है आगे इसमें, लेट्स डिस्कस। कैनरा बैंक में आगे क्या पिक्चर दिखती है? मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ऑन मंथली टाइम फ्रेम if you look at the picture, there it is a supply zone that is fresh and probably इस एरिया में अभी तक प्राइस ने अप्रोच नहीं किया है। इसके अलावा जितने भी सप्लाई जोन हैं, एक ये है, ये भी फ्रेश सप्लाई जोन कंसीडर कर लीजिए इफ यू मार्क बॉडी टू बॉडी। तो इसको भी प्राइस ने एक बार के लिए अभी टच किया और यहीं से प्राइस नीचे आई और अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन कहाँ से हुई? ये वाले डिमांड जोन से। नाउ व्हाट वी आर वाचिंग इज कि प्राइस के मंथली सप्लाई जोन जितने भी हैं वो सारे ब्रीच होते जा रहे हैं और मंथली के डिमांड जोन्स एक के बाद एक चलते चले जा रहे हैं। कैसे चल रहे हैं देखते हैं इस पिक्चर को ही। इसी पिक्चर को थोड़ा सा और एनलार्ज करके देखते हैं पीछे चल के। देयर इट वाज अ सप्लाई जोन, इसकी रिफ्लेक्शन से ये बना था, इसकी रिफ्लेक्शन से ये बना था, इसकी रिफ्लेक्शन से ये बना था, एक बार के लिए ये वाला सप्लाई जोन भी था। डिमांड जोन ने हालांकि इसको ब्रीच किया, प्राइस और ऊपर आने की कोशिश कर रही है, देयर इट वाज अनदर सप्लाई जोन। ये छोटे छोटे जो डिमांड जोन, जो अच्छे अच्छे डिमांड जोन बनते जा रहे हैं, एक बार के लिए प्राइस को पुश कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली एज द सेलिंग प्रेशर इज हाई एंड प्राइस इज कमिंग फ्रॉम ऑल टाइम हाई, तो ये डिमांड जोन सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि डिमांड जोन्स इवन इफ दे आर बीइंग फॉर्म्ड वो सस्टेन नहीं कर रहे,
चल क्या रहा है, चल रहे हैं सप्लाई जोन एंड प्राइस इज अप्रोचिंग ऑल टाइम लो। यहाँ तक प्राइस आ चुकी है, यहाँ तक का हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं। इसके आगे चल के देखते हैं क्या हुआ प्राइस में। अगेन देर इट वाज अ सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये वाला, जिससे यहाँ से प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर गई तो इस वाले एरिया ने इसको दोबारा से पुश किया। दैट मीन्स स्टिल सेलिंग प्रेशर इज हाई, इवन इफ डिमांड जोर्स आर बीइंग फॉर्म, वो एक एक बार के लिए प्राइस को रोक रहे हैं बट आर नॉट एबल टू स्टॉप द प्राइस कंप्लीटली। सो व्हाट इज हैपनिंग, सप्लाई जोन बनते जा रहे हैं और डिमांड जोन ब्रीच होते जा रहे हैं एंड प्राइस इज कमिंग टू ऑल टाइम लो, प्राइस इज कमिंग टू ऑल टाइम लो। उसके बाद एक ये वाला भी सप्लाई जोन बन गया, ये वाला भी एक मंथली का सप्लाई जोन बन गया। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, just look at the picture carefully. Now what's happening, यहाँ पर जब सारे सप्लाई जोन चल चुके, प्राइस अपने ऑल टाइम लो पे आ गया, तो इफ यू विल फोकस हियर, देयर इट वाज अ कंफर्मेशन एंट्री ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ऑन वीकली टाइम फ्रेम देयर इट वाज अ कंफर्मेशन एंट्री जिसने अपने एक सप्लाई जोन को ब्रीच किया और हमें लॉन्ग होने के लिए अलाउ किया। दिस वाज द डिमांड जोन। सी कहाँ पर है सेलिंग, ये रही पूरी सेलिंग, ये सप्लाई जोन बना, इस सप्लाई जोन के ऊपर इस वाले डिमांड जोन ने क्लोजिंग दी, from here we can go long. But why to wait until this area when at this point in time all the major stocks, all the highly weighted stocks, all the sectors, Nifty, Bank Nifty are entering into their annual time frame demand zone? Why to wait for a confirmation? This is the right time to buy. यही सेक्टोरियल एनालिसिस की पावर है कि सेक्टोरियल एनालिसिस को अगर आप समझ गए तो इंस्टेड ऑफ डूइंग टेकिंग कंफर्मेशन एंट्री हेयर, यू कैन टेक एंट्री हेयर आल्सो। पर ठीक है, हमने वहां नहीं ली, हमने एंट्री यहाँ ले ली। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये डिमांड जोन वीकली का चला, इसके बाद क्या हो रहा है देखते हैं, इसके बाद की पिक्चर क्या है। इसके बाद वीकली के जो भी छोटे छोटे डिमांड जोन्स बन रहे हैं वो सब रिस्पेक्ट हो रहे हैं। जस्ट लुक एट द एरिया, whatsoever even smaller time frame पर वीकली के डिमांड जोन्स बन रहे, इवन द स्मॉलर not so good demand zones or the good demand zones are getting respect। प्राइस को रोक कौन रहा है, प्राइस को रोक कौन रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ आफ्टर टेकिंग कंफर्मेशन, दिस एरिया स्टॉप द प्राइस एट वंस, इस ऊपर वाले ने भी प्राइस को रोका और जो भी यहाँ कंसोलिडेशन होनी थी वो सारी कंसोलिडेशन हो गई। Then there it was another demand zone that was formed on monthly time frame that is still fresh। इसके बाद ये वाला मंथली टाइम फ्रेम भी डिमांड जोन फ्रेश है, ये वाला टाइम फ्रेम का मंथली डिमांड जोन भी फ्रेश है, ये वाला चल गया। तो जब मंथली के न्यूली फ्रेश डिमांड जोन बनना शुरू हुए that were not getting test and supplies those started getting breached, it was completely sure कि यहाँ से जो अपमूव आने वाला है that will lead to कैनरा बैंक ऑल टाइम हाई। पर जब ऊपर जाएगा तो एक बार के लिए ये वाला मंथली का एरिया रोकेगा, प्राइस को पुश डाउन करेगा, प्राइस को किसी मंथली के डिमांड जोन पे लेके आएगा। बिकॉज टू बीट द मंथली सप्लाई जोन वी नीड एटलीस्ट द सपोर्ट ऑफ मंथली टाइम फ्रेम डिमांड जोन। यहाँ पर भी एक मंथली का सप्लाई जोन बना है, ये वाला, पर ये कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक गार्बेज जैसा स्ट्रक्चर है। पर गार्बेज ने भी एक बार के लिए प्राइस को रोका है बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर, बिकॉज निफ्टी एंड ऑल अदर थिंग्स आर इन प्रेशर, एंटायर सेक्टर इज इन प्रेशर। एक बार के लिए ये वाला एरिया भी प्राइस को रोकेगा, पर कब तक रोकेगा। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहने वाला है कैनरा बैंक का, अल्टीमेटली रिजल्ट यही रहेगा कि प्राइस इस सप्लाई जोन को टच करेगा, फिर किसी मंथली के डिमांड जोन में आएगा, अगेन अगेन किसी मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आएगा, वहां से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर वाले सप्लाई जोन को टच करेगा, फिर इस डिमांड जोन में आएगा मंथली के, देन प्राइस विल अप्रोच एट ऑल टाइम हाई।
अब हम कैसे कंफर्म करें कि हम एंट्री ऊपर लें या नीचे लें? द आंसर इज सिंपल, प्रेटी मच सिंपल। जब कभी आप कंफ्यूज हो और सेक्टर के साथ स्टॉक्स, मल्टीपल सेक्टर्स, हाईली वेटेड स्टॉक्स, लोअर वेटेड स्टॉक्स are entering into the demand zone at the same time, this is the best time for investment. That is the best time for investment. Like we saw yesterday, हमने डिस्कस की थी कुछ एक डेट्स, 7 जून, 3 अप्रैल, सॉरी 5 अप्रैल। तो वो जो कुछ एक डेट्स थी ना, दोज वर इनक्रेडिबल डेट्स, जब बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ एंटर्ड इनटू अ डिमांड जोन। दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। अभी कौन सा बेस्ट टाइम होगा? इन द पिक्चर दैट आई जस्ट शोड यू, कि जब भी कभी ऐसी पिक्चर बने जहां पर अभी मैंने निफ्टी और बाकी बड़े बड़ी कंपनीज का कंपैरिजन आपको दिखाया, जब भी कभी उन एरियाज में प्राइस एक साथ एंटर करे, इट कुड बी एट द सेम टाइम, इट कुड बी, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन मान लेते हैं एट द सेम टाइम अगर आपको बैंक, कैनरा बैंक अगर इस डिमांड जोन में मिलता है, तो क्या आप घबराएंगे 50 रुपए वाले डिमांड जोन में? द आंसर इज नो, यू शुड नॉट। वाई? क्योंकि एट द सेम टाइम आपको बाकी चीजों का भी सपोर्ट मिल रहा है, एंड विद कलेक्टिव फोर्स ये इतना तेज रिवर्सल होगा कि आप अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाओगे, एंड दिस विल लीड कैनरा बैंक टू ऑल टाइम हाई। घबरा ही जाओगे, इसमें कहीं आपको एंट्री मिलेगी नहीं, और जब तक आप इसमें एंट्री लेने की सोचोगे, तब तक तो 2 3 4 दिन के अंदर ये 30 40% स्टॉक बढ़ चुका होगा। यू वॉन्ट गेट एंट्री। इसीलिए सेक्टोरियल एनालिसिस को समझना बेहद जरूरी है। विद द सपोर्ट ऑफ सेक्टोरियल एनालिसिस, yes, we can catch the falling knife, as this theory do not apply on our approach of sectorial analysis. See, when rally is being formed by testing all demand zones, जब जब ये सब सेलिंग आ रही है नीचे और सारे सेलिंग के सप्लाई जोन्स टेस्ट होते जा रहे हैं, दैट मीन्स नाउ देर इज नथिंग लेफ्ट। अब यहां से प्राइस को ऊपर ही जाना है, एक एक बार के लिए सारे सप्लाई जोन प्राइस को रोकेंगे। जो अच्छा सप्लाई जोन होगा वो एक बार के लिए प्राइस को पुश डाउन भी कर देगा, लाइक दिस वन डिड। पर अल्टीमेटली प्राइस विल गो अप। एंड व्हाट इफ प्राइस ऊपर जाते हुए सारे डिमांड जोन्स को टेस्ट करते हुए जा रहा है, देयर इज नो फ्रेश डिमांड जोन, तो क्या होगा? जब प्राइस नीचे गिरेगा तो वो गिरेगा भी ऐसे ही, कि जब डिमांड जोन में कुछ अच्छा है ही नहीं, तो एक बार के लिए प्राइस रोकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर कुछ नहीं है रोकने के लिए, देयर इज नो गुड डिमांड जोन टू स्टॉप द प्राइस, अगेन इट विल गो अ स्लाइड अप, देन इट विल कम डाउन। This is how it's going to happen. Why there it was a certain downfall? Because there it was nothing good until this area or this area. This area was tested. यहाँ पर बहुत सारी बेस कैंडल्स थी। ऑल्दो बिकॉज ऑफ मल्टीपल बेस कैंडल्स एक बार के लिए प्राइस को इसने रोका, थोड़ा सा ऊपर पुश किया। दिस डिमांड जोन ऑल्सो पुश द प्राइस अ बिट अप, दिस डिमांड जोन ऑल्सो पुश द प्राइस अ बिट अप, दिस डिमांड जोन ऑल्सो पुश द प्राइस लॉट ऑफ। वाई लॉट ऑफ? बिकॉज ये सारा ओरिजिन था, ये इतने बड़े प्राइस मूवमेंट का ओरिजिन था, इसलिए इसने प्राइस को सबसे ज्यादा ऊपर पुश किया, डिस्पाइट द ऑल थ्री अबव डिमांड जोन्स। पर हुआ क्या? अल्टीमेटली प्राइस में सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्राइस उस एरिया से नीचे आ रहा था। अब ये वाला सारा एरिया प्राइस को ज्यादा देर क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 टाइम्स टेस्ट हो गया। तो द एरिया सप्लाई जोन देखिए है क्या? There are two theories. Conventional people says that there is a pattern. If you connect higher highs and higher lows, तो एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि जब वो पैटर्न जितनी बार बनेगा, उतनी बार वो चीज स्ट्रांग होती चली जाएगी। मतलब जितनी बार यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, ये स्ट्रांग होता जा रहा है, वो इसको एक चैनल मान रहे हैं पूरा। पर फॉर अस एज बीइंग अ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर, हमारे लिए वो एरिया जितनी बार सप्लाई को टच कर रहा है, फॉर अस दैट एरिया इज गेटिंग वीकर, हमारे लिए वो स्ट्रांग नहीं हो रहा। निफ्टी बैंक ईयरली टाइम फ्रेम डिमांड जोन, there is no yearly time frame demand zone except this area which has been tested
एट द टाइम ऑफ कोरोना, उसके बाद ये वाला डिमांड जोन है दैट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड, दो इट वाज टेस्टेड विक टू विक until this area. ये भी टेस्टेड है ईयरली टाइम फ्रेम पर. द अदर डिमांड जोन दैट वाज बिल्ट ऑन ईयरली टाइम फ्रेम, ये भी टेस्टेड है. What's there on half yearly time frame? On half yearly time frame, yes, definitely there it is a good demand zone. Here it is, but it has been tested wick to wick. If we take the wick of this red candle, it has been tested और प्राइस यहीं से रिफ्लेक्ट करके ऊपर गया है. लेट्स सी ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम. ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम, सी प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो अपने सारे ही क्वार्टरली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स को टच करते हुए जा रहा है. देयर इट वाज फॉर्मेशन ऑफ अ डिमांड जोन. Here it is the demand zone. प्राइस ने इसको टच किया, इट फॉर्म्ड अ न्यूली फॉर्म डिमांड जोन. हियर इट इज. अगेन प्राइस ने इसको टच किया, अगेन अ न्यूली फॉर्म डिमांड जोन. प्राइस फिर से इसको टच करके ऊपर जा रहा है. दिस मीन्स वॉज सारे जितने भी फॉलो अप डिमांड जोन बन रहे हैं ऑन बिगर टाइम फ्रेम, every single demand zone is tested. Every single demand zone is tested. So when price will come back with the full force, what will happen? Is there anything good to stop it except this area? The answer is no. पर क्या बीच में कहीं से रिवर्सल आ सकता है? डिपेंड्स. जब रिवर्सल आ रहा है एट सेम पॉइंट इन टाइम, कितने स्टॉक्स डिमांड जोन में हैं, कितने स्टॉक्स डिमांड जोन में हैं. मुझे लगता है कि जब इसमें रिवर्सल आने की बात होगी, ईदर दिस डिमांड जोन दैट आई एम मार्किंग विद द ग्रीन, एक बार के लिए ये चलेगा. जब प्राइस प्रेशर के साथ नीचे आएगी, एक बार के लिए ये वाला डिमांड जोन भी चलेगा जिसमें बेस कैंडल भी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा. दिस एरिया, दिस एरिया विल डू. यहाँ से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है, इधर से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है, एंड फ्रॉम हेयर टू द प्राइस कैन रिवर्स. ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ टेस्टेड डिमांड जोन. ये एक फ्रेश डिमांड जोन है दैट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड. ये एक फ्रेश डिमांड जोन है जो कि इसकी रिफ्लेक्शन से बना है. तो अभी ले दे के बचता क्या है? दिस डिमांड जोन नंबर वन. लेट मी मार्क इट एज डिमांड जोन नंबर वन. And the other demand zone that is on the lower side, ये रहा डिमांड जोन नंबर टू. अब कौन सा चलेगा इन केस ऑफ वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन और कोरोना लाइक सिचुएशन? इन दोनों में से कौन सा डिमांड जोन चलेगा? द आंसर इज सिंपल. ये जो गार्बेज टाइप ऑफ जो डिमांड जोन्स जो बन रहे हैं ना, ये तो एक एक बार के लिए बस खाली प्राइस को रोकेंगे. सही मायने में प्राइस को रोकने का दम किस में है? ये तो इस डिमांड जोन नंबर वन में, या इस डिमांड जोन नंबर टू में, या RB5 क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर जो ये पूरा रिवर्सल बना है ना, ये जो पूरा रिवर्सल बना है इसमें जो ओरिजिन वाला जो डिमांड जोन है, ओरिजिन वाला डिमांड जोन जो हमने ओरिजिन की क्लास में डिस्कस किया था, दैट वी डिस्कस इन द क्लास ऑफ ओरिजिन. इन तीनों में से ही कोई एक डिमांड जोन होगा जो प्राइस को रिवर्स कराएगा. पर कौन सा डिमांड जोन होगा, क्या ये हम अभी से बता सकते हैं? द आंसर इज नो. इसका पता हमें कब चलेगा? इसका पता हमें तब चलेगा जब प्राइस इस एरिया के अंदर एंटर करेगी. प्रायर टू दैट वी कैन नॉट से कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा या नहीं करेगा. उस टाइम पे कितने स्टॉक्स, कितने सेक्टर्स एक साथ डिमांड जोन पे एंटर करते हैं, दैट विल डिसाइड द रिकवरी ऑफ द डिमांड जोन और रिकवरी ऑफ द एंटायर मार्केट. पर मार्केट में जब निफ्टी 53,000 से गिर के इस 23,500 वाले एरिया में आएगी, ट्रस्ट मी आधे लोग तो होप खो चुके होंगे. 24,800 वाले एरिया में या 35,583 यानी कि 35,600 वाले एरिया में जब प्राइस आएगी, आधे लोग तो होप ही खो चुके होंगे, उनके हाथ पैर फूल चुके होंगे. दे वॉन्ट टेक एंट्री, बट ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट एरिया टू एंटर इनटू द मार्केट जब निफ्टी अपने बाकी सारे हाईली वेटेड स्टॉक्स के साथ, बैंक निफ्टी के साथ, बाकी सेक्टर्स के साथ
किसी भी ऐसे डिमांड जोन में एंटर करे, दैट इज गोइंग टू बी द रिवर्सल पॉइंट। तो अब मुझे इस जगह पे आने की प्रोबेबिलिटी हाई क्यों नजर आ रही है? देर इट वॉज अ डिमांड जोन जो चल गया वीकली का, ये रहा, ये 4 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन चल गया जो प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। प्राइस ने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग भी दे दी। नाउ प्राइस इज कमिंग डाउन। नाउ देयर इज नथिंग गुड एक्सेप्ट दिस एरिया। और ऑन डेली टाइम फ्रेम देर आर टू डिमांड जोन्स, वन इज हेयर एंड अनदर इज हेयर। इन दो के अलावा कोई अच्छा डिमांड जोन प्राइस को रोकने के लिए नहीं है। नीदर ऑन द बिगर टाइम फ्रेम ऑल द डिमांड जोन्स आर टेस्टेड। मैं नहीं कह रहा कि बैक टू बैक इतने सारे डिमांड जोन्स है क्वार्टरली के तो सारे ब्रीच हो जाएंगे, बट व्हाट इफ प्राइस कम्स विद अ ह्यूज प्रेशर? सब एक एक बार के लिए चलेंगे, जैसे इसने ऊपर जाने की पिक्चर बनाई, एक कुड भी वैसे नीचे आने की पिक्चर बनाए। पर अगर जो एरिया मैंने अभी आपको दिखाया था उस एरिया में कभी भी एंट्री मिले, ऑलवेज फील फ्री टू गो लॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ सेक्टर। That's all from my side. Have a good night. We will discuss other things also. See, again, mark my words, something negative will have to come into existence. Only institutional investors cannot bring the price down. It is equally important that retailer should get panic and should start selling its position, should start means square off करे वो अपनी position, only then the price can approach to its lower levels. अगर न्यूज हो एवरीथिंग इज डूइंग वेल, देन रिटेलर विल टेंड टू बाय ऑन एवरी डिप एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल नॉट गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू बाय एट द बॉटम। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बॉटम पे खरीदना है तो वो कैसे खरीदेगा? ही विल हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द रिटेलर। only then the retailer is going to sell. If everything goes well, price can never come down to the demand zone, and if price can never come down to the demand zone, the price can never react। और प्राइस अगर वहां से रिएक्ट नहीं करेगा तो नए ऑल टाइम हाई के मुकाम कैसे हासिल करेगा? द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंड इन एट द टाइम ऑफ कोरोना। देयर इट वाज अ क्वार्टरली डिमांड जोन दैट वाज टेस्टेड, उससे पहले वाला दैट वाज टेस्टेड, उसके बाद यही बचा था, ये ब्रीच हो गया। इसके नीचे वाले एरिया से प्राइस चली जहां पर इसको ईयरली के ईएमए का सपोर्ट था, हाफ ईयरली के ईएमए का सपोर्ट था, वहां से प्राइस चली और आज प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। पर अगर कोई नए फॉलोअप डिमांड जोन्स जो बन रहे हैं, जो फ्रेश डिमांड जोन्स बन रहे हैं, अगर वो इस तरीके के अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं हैं तो वो कितना टाइम सस्टेन करेंगे? और एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर जब ऐसा आ गया तो उसके आगे कितना सस्टेन करेंगे? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क दैट यू विल हैव टू लुक एट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड नाइट डियर फ्रेंड्स। लेट्स कनेक्ट मंडे इवनिंग। और अगर आपके इस क्लास में कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा, और मल्टीपल टाइम्स इन सेक्टोरियल एनालिसिस की क्लास को ज़रूर देखिएगा। ट्रस्ट मी, विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई हैव prepared these 2 sessions. The third session that we are going to conduct on investment in 26 class, that is going to be a tremendous session. पर till then इन दोनों सेशंस को वीकेंड पे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।